Hello students, I am JP Nautiyal from Rishiram Shikshan Sasthan Online Education, and today we will learn the next lesson of your book Behave Class 9 CBSE, third chapters or third lessons, third chapter, no it's second chapters, second poem, that is Wind. Wind, which is a natural process, natural phenomena, and here the poet describing the wind in different fancies, imaginations, and actually the poem is written by Subramania Bharati, and the poem actually written in Tamil by A.K. Ramanujan, and this is translated from the Tamil by A.K. Ramanujan, and the poem written by Subramania Bharati. Actually, the poem written in Tamil and which is translated by A.K. Ramanujan. So Subramania Bharati Subramania Bharati 1882 to 1921 is a great Tamil poet, famous for his patriotism यानी कि देशभक्ति की जो रचनाएं हैं in the pre-independence era. Era means the past time before independence. They were famous to write the patriotic poem in Tamil language, and A.K. Ramanujan is a Kannada and English poet who has translated this poem Wind, actually written by Subramania Bharati and A.K. Ramanujan. A.K. Ramanujan is a Kannada and English poet and is well known for his translation of classical and modern poetries. He is famous for the translation of classical and modern poetries. So here this is about the introduction of the writers and translator of the poem, and now let's continue with the poem. Now, wind is a natural process or natural phenomena which occurs, but here in this poem the poet describes the different form of the wind, and here the wind is symbolizes as the hardship, difficulties, challenges in the life of human beings. The life of human beings, the hardship and difficulties here symbolizes by the wind. And initially the poet prays to the wind that the wind come softly, come gently, but the difficulties, the hardship, the challenges in the life, they will not listen us. Certainly, definitely they will come, and to face them we must build ourselves strong, because the nature flourish or enrich the stronger and the fittest things. Here the law of survival of the fittest is also defined through the wind, and when we build ourselves strong to face the hardship, the challenges, the difficulties which may occurs in everyone's life, then the wind or the difficulties or the hardship in the life will become our friend. So here let's begin with the reading and explanation of the poem, as well as with the hard
और द न्यू वर्ड्स, जो नए शब्द जो आए हैं उनका वर्ड मीनिंग भी देखेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। और शुरू करते हैं विंड। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। दो तरह की विंड, स्ट्रांग विंड, सॉफ्ट विंड या स्लो विंड। सॉफ्ट या स्लो विंड जो होती हैं वो अच्छी हैं, और जो हार्ड विंड है, जो ये टफ है, ये स्ट्रांग विंड डिफ़िकल्ट होती हैं इनमें सरवाइव करना। अरे पेन क्यों नहीं आ रहा है? शिट, पेन क्यों? अच्छा पेन यहाँ से काम करेगा, ठीक है, ओके। सो द विंड ब्लोज स्ट्रांगली कॉज डिस्ट्रक्शन। जो हार्ड विंड होती हैं, फास्ट विंड होती हैं, दे कॉज द डिस्ट्रक्शन, विनाशकारी होती हैं। और फिर हम उनसे फ्रेंड कैसे बनेंगे उनका, हाउ वी मेक फ्रेंड विद देयर, मैं बता चुका हूँ कि उसके लिए हमको मजबूत बनना होगा, हमको टफ बनना होगा, ताकि हम उसमें सर्वाइव कर सकें। सो लेट्स रीड। विंड कम सॉफ्टली, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। अब क्या हो गया यहाँ तक, पहले देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। विंड कम सॉफ्टली, फिर सेकंड फेज जो देखेंगे वो यहाँ पर हो जाएगा। जो सॉफ्ट विंड है यहाँ पर सिंबलाइज किया है एक छोटे बच्चे की तरह, सॉफ्टली यानी कि स्लोली। ए हवा धीरे बहो, तेज मत आओ, स्लो आओ। ए हवा स्लो चलो, चूंकि और क्या मत करो, डोंट ब्रेक शटर्स। शटर्स मीन्स डोर्स, डोंट ब्रेक शटर्स, शटर्स मीन्स डोर्स ऑफ द विंडोज़। जो पल्ले हैं, जो दरवाजे हैं खिड़कियों के, उनको मत तोड़ो, धीरे से आओ और खिड़कियों के दरवाज़ों को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स। हेयर स्कैटर, स्कैटर का मतलब होता है कि थ्रो इन डिफरेंट डायरेक्शंस, मतलब बिखरा मत देना, छितरा मत देना। डोंट थ्रो इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जो पेपर्स हैं, चूँकि ये पोएट है और पोएट ने अपने पेपर्स कुछ रफ जो उसने क्रिएशंस जो की हैं उन सब के लिए कह रहे हैं कि उनको मत फेंको। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। और जो शेल्फ, जो बुक शेल्फ हैं, बुक शेल्फ पर जो हमने बुक रखी हैं उनको शेल्फ, शेल्फ मीन्स जो वार्डरोब जिसको बोल सकते हैं हम, वाल में जो लगा होता है। शेल्फ अलमारी, स्लैब शेल्फ, और मेंटल पीस या दीवार में बनी हुई जो पर्शियन स्लैब कह सकते हैं उसको, ऑन द सेल्फ। और उनको मत फाड़ना, डोंट थ्रो देम द सेल्फ। अब क्या होता है आगे, लेट अस सी हियर। अब आगे ये होता है कि कहते हैं डियर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू tore द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन। और तुमने क्या किया, देखो देखो देखो, अभी विंड से, हवा से कह रहा है कि देखो तुमने क्या किया। यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं सेकंड में कि तुम क्या मत करो, लुक व्हाट यू डिड। और अचानक क्या होती है, जैसे हमने कहा है कि ये फर्स्ट फेज़ है और सेकंड फेज़ में क्या हो गया है, ये बचपन का फेज़ है यहाँ पर। और अब यहाँ पर विंड क्या हो गई है, थोड़ी सी बढ़ गई है, यूथ, युवा हो गई है, यूथ की फॉर्म में आ गई है। और अब यहाँ पर क्या है, देयर, विंड को यहाँ पर एक्सक्लेमेट करके उसको एड्रेस करके कह रहे हैं लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, थ्रू देम ऑल द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो रखी थी उनको नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, और तुमने क्या किया, जो बुक के जो पेज थे, जो पन्ने थे, उनको फाड़ दिया है। एंड यू ब्रॉट रेन अगेन। और फिर क्या होता है, जब तेज़ हवाएं होती हैं और फिर उसके कुछ ही टाइम बाद में क्या, बारिश भी होनी शुरू हो जाती है। तो जो रेन भी है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। कहीं कहीं पर उसको दुख का सिंबल भी माना जाता है कि जो शाइनी है तो अच्छा इन्वायरमेंट है, और अगर बारिश हो रही है तो अच्छा माहौल नहीं है, रोने धोने जैसा मौसम लगता है। और अभी ग्रेजुअली एज यू कैन सी दैट
द मानसून सीजन इज अप्रोचिंग, सो यहाँ पर रेन भी वही परेशान करने वाला मौसम जैसा ही लगता है। अच्छा भी होता है लेकिन साथ ही उसको दुख का सिंबल भी माना जाता है। जो डिफ़िकल्टी है वो बढ़ती जा रही हैं। तुमने क्या किया, किताबों को भी नीचे फेंक दिया, पन्ने भी फाड़ दिए और फिर बारिश भी आ गई है। अब देखो आगे क्या है कि यू आर वेरी क्लेवर, यू आर वेरी क्लेवर। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देयर लुक ये हो गया है। नाउ चलो इसको मिटा देते हैं और फिर आते हैं नेक्स्ट पे। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts। अब यहाँ पर ये देखो crumbling crumbling कंटिन्यू आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड अब यहाँ से हम देखते हैं इन 4 लाइनों का। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन, पोकिंग फन मीन्स मेकिंग फन, मजाक बनाना या मजाक उड़ाना। एट वीकलिंग्स, वीकलिंग्स मीन्स वीक, जो कमज़ोर होते हैं, जो ताकतवर नहीं होते हैं, जो कि कम स्ट्रांग होते हैं, कम ताकतवर होते हैं, तुम क्या करती हो, उनका मजाक उड़ाती हो। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो। किसके लिए, एट पोकिंग फन, किस में चालाक हो तुम, मजाक बनाने में। किसका मजाक बनाने में, वीकलिंग्स, जो कमज़ोर लोग हैं उनका मजाक बनाने में तुम क्या हो, बहुत ज़्यादा क्लेवर हो, तुम्हें बहुत आता है जो कमज़ोर हैं उनका मजाक बनाने के लिए। कमज़ोर का मतलब है जो छोटे बच्चे होते हैं, वो तेज़ हवा में कभी गिर भी सकते हैं। जो मजबूत घर नहीं होते हैं, जो कच्चे हल्के फुल्के जिनकी छत होती है, जो घास फूस के बने हुए मकान होते हैं, जो गरीब लोगों के होते हैं, जो कमज़ोर लोगों के होते हैं, उन पर तुम क्या करते हो, उनका मजाक बनाते हो, उनको तोड़ देते हो। फ्रेल, फ्रेल हेयर फ्रेगाइल, फ्रेगाइल यानी कि जो टूटने वाले हैं, जो नाजुक हैं, जो कमज़ोर हैं। सो क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग का मतलब है गिरा देना, डिकेइंग और ब्रेकिंग अप या नष्ट होते हुए, यानी कि फॉल डाउन वी कैन से हेयर, फॉल डाउन। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाजे गिर गए हैं, मकान गिर गए हैं। क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, रैफ्टर्स क्या है, राफ्टर्स आर द स्लोपिंग बीम टू सपोर्ट द रूफ, जो छत को जो सपोर्ट देने के लिए जो बीम जो बनाई जाती हैं, दैट्स कॉल्ड राफ्टर, सपोर्टिंग बीम फॉर सपोर्ट द रूफ। क्रम्बलिंग वुड, वुड यहाँ पर क्या है, जंगल, और फिर जंगल भी गिर गए। क्रम्बलिंग बॉडीज़, बॉडीज़ जो शरीर हैं, ह्यूमन बॉडीज़ हैं। क्रम्बलिंग लाइफ्स, जो जीवन हैं, जीवन भी नष्ट हो गए। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और फिर क्या होता है, जब ये सब हो जाता है तो जो दिल हैं, दिल भी टूट जाते हैं। दिल कैसे टूट जाते हैं, दुख से, दुख होता है जब मजाक, कमज़ोरों का तुम मजाक बनाते हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, वुड जंगल, रैफ्टर सपोर्टिंग बीम फॉर रूफ। क्रम्बलिंग बॉडीज़ यानी कि शरीर जिसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं। क्रम्बलिंग लाइव्स, जीवन, एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स, दिल भी टूट जाते हैं। तो ये तुमने ये किया है, जो कमज़ोर हैं उसका विंड इस तरह से मजाक बनाती है। और नाउ कम टू द नेक्स्ट, हियर द पोएट सेज, अब क्या करना है इसमें, द विंड गॉड विनोज, विनोज का मतलब होता है सेपरेटिंग ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम, जो ग्रेन, जो अनाज के जो दाने होते हैं उनको अलग करना है, किससे, फ्रॉम द शेफ और हस्क। सी हेयर these women are winnowing, see this is the winnowing, these women are winnowing wheat grains from chaff और straw, जो भूसा है, भूसा तो हल्का होता है, वो अलग इकट्ठा हो जाता है, और जो भारी दाने होते हैं वो एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। Here the winnowing process which occurs in presence of wind, जब हवा चलती है तभी हम विनो कर सकते हैं, तभी हम ओसा सकते हैं अनाज को भूसे से अलग करने की जो प्रक्रिया है। तो फिर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर ये क्यों लिया है ओसाने वाला, विनोज। अब विंड क्या करती है, विंड एक फिल्टर का काम भी करती है कि ये विनोइंग करती है। द विंड गॉड, अब इन्होंने क्या किया है, जो हवा है उसको
टॉप पोजीशन पर रख दिया है, और टॉप पोजीशन पर रखने के बाद में क्या किया, उसको भगवान बना दिया। विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, उसको अलग करते हैं, और जो खराब होता है, जो कमज़ोर होता है, जैसे कि भूसा है, उसको अलग कर दिया, तो उसको क्रश कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया यहाँ पर। तो यानी कि जो मजबूत थे उनको एक तरफ कर दिया विंड गॉड ने। गॉड मीन्स नेचर, जो प्रकृति है, यहाँ पर विंड गॉड, यहाँ पर जो विंड, जो नेचर का ही एक प्रोसेस है, एक फिनोमिना है, उसको गॉड या भगवान की उपाधि दे दी गई है। और वो क्या करते हैं, विनो करती हैं। विनो मैंने अभी समझाया है कि सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क और शेफ, तो उसको अलग किया। एंड क्रसेस देम ऑल, और जो भूसा है उसको अलग कर दिया, उसको ऐसे कर दिया, फिल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग, तो ये सब चीज़ें कमज़ोर थी, तो उसको क्रम्बल कर दिया, तो क्रम्बल या क्रैशेस देम ऑल। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, क्योंकि फर्स्ट स्टैंजा में यहाँ पर पोएट ने क्या कहा था विंड से कि तुम स्लो बहो भाई। यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट में कहा था ना कि विंड कम सॉफ्टली, तो ये यहाँ पर नहीं सुनेंगे, यानी कि जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो हार्डशिप हैं, जो जीवन की, ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम, वो ये नहीं करेगा जो तुम उससे कहोगे, वो विंड कभी नहीं करेगी। विंड वही करेगी जो उसको करना होगा। द विंड गॉड विनोज क्रसेस देम ऑल एंड इट वॉन्ट टू दैट विच यू टेल देम, जो तुम कहोगे वो बिल्कुल भी नहीं होगा, होगा वही जो ये डोंट टेल यू हिम। तो जब हार्डशिप है, जो डिफ़िकल्टी है, तुम बोलोगे नहीं भाई हम कमज़ोर हैं, हम मजबूत नहीं, हम तैयार नहीं हैं उसके लिए, हमको बख्श दो, हमको माफ़ करो, हमारी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ नहीं आए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। जो चैलेंजेस हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, सर्टेनली दे विल कम इन द लाइफ, एंड फिर उनसे बचने के लिए क्या करेंगे, सो कम, तो चले आओ। यहाँ पर पोएट कहते हैं हमसे, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। स्ट्रॉन्ग होम्स, जो घर हैं उनको मजबूत बनाएं, अपने आप को मजबूत बनाएं, जिसकी हम बात कर रहे हैं आजकल, इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। तो हमारी जो आत्मा है वो हमारे इस शरीर में रहती है, तो उस शरीर का जो घर है, उस आत्मा का जो घर है वो शरीर है। जैसे हम अपने घरों में रहते हैं, तो उसको स्ट्रांग बनाना है, और हमें भी अगर सरवाइव करना है और लंबे समय तक अगर जीना है, तो उसके लिए हमें अपनी इम्यूनिटी और अपनी बॉडी को, जिसमें हमारी आत्मा या सोल जिसमें रेजाइड करती है, एग्जिस्ट करती है, उसको स्ट्रांग बनाना होगा। और हम जिस घर में रहते हैं उसको भी स्ट्रांग बनाना होगा, दोनों ही तरफ से। शरीर को भी मजबूत बनाना है और घरों को भी मजबूत बनाना है। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, फर्मली, टाइटली, स्ट्रांगली, मजबूती से हमें क्या करना है, अपने घरों को मजबूत बनाना है और अपनी बॉडी को भी फर्म बनाना है, मजबूत बनाना है, स्ट्रांग होम्स। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, और अपने दरवाजे हमें मजबूती से बंद करने हैं। अब दरवाजे क्या हैं कि जो गलत चीज़ें हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश ना कर सकें, तो दरवाज़ों को हम टाइटली बंद कर देंगे। और हमारे घर में जो स्ट्रांग विंड है वो भी नहीं आ सके, तो उसके लिए हमें अपने दरवाजे मजबूत करने होंगे। और फिर प्रैक्टिसाइज टू फर्म द बॉडी, जो शरीर है उसको मजबूत बनाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, और शरीर को मजबूत बनाना पड़ेगा। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और अपने दिल को भी मजबूत बनाना पड़ेगा, ताकि छोटी मोटी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो परेशानियां हैं, जो गलत, जो हमें ऐसी कोई न्यूज़ आती है जिससे हमारा हार्ट ब्रेक हो सकता है, क्रम्बलिंग हार्ट्स, तो उसके अगेंस्ट में भी हमको अपने हार्ट को भी मजबूत बनाना है, दिलों को भी मजबूत बनाना है। और ये कर लेंगे अगर हम ये कर लेते हैं, सो कम, ये जो 4 लाइनें हैं, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिसाइज टू फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टीड फास्ट। अब अगर हम ये कर लेते हैं, फर्म कर लेते हैं, स्टीड फास्ट कर लेते हैं, अपना दृढ़ हृदय कर लेते हैं, मजबूत दिल कर लेते हैं, मजबूत बॉडी बना लेते हैं, दरवाज़ों को मजबूती से बंद कर लेते हैं कि कोई भी गलत चीज़ हमारे शरीर में प्रवेश न करें, और हम घर भी मजबूती से बना लेते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, ये सब अगर हमने कर दिए, डू दिस, ये सब किया, तो क्या हो जाएगा, डू दिस एंड द विंड विल फ्रेंड्स विद अस। और फिर जो डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, जो हार्डशिप आएंगी, जो चैलेंजेस आएंगी, वो हमारे क्या हो जाएंगे, फ्रेंड हो जाएंगे, उनसे हमारी फ्रेंडशिप हो जाएगी।
देन वी विल बिकम द फ्रेंड्स ऑफ द डिफ़िकल्टीज, द हार्डशिप, द चैलेंजेस जो भी आएंगे हमारे लाइफ में, वो हमको मुश्किल नहीं लगेंगी, वो हमें दोस्त की तरह, क्योंकि हम उनसे क्या हो जाएंगे, यूज टू हो जाएंगे, अभ्यस्त हो जाएंगे उनसे। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो हवा है सिम्बोलाइजेस किया है डिफ़िकल्टीज से, ये बुझा देती है, ब्लोज आउट, किसको बुझा देती है, वीक फायर्स। जब छोटी एक माचिस की तीली लेकर के हम चलेंगे तो जरा भी अगर हवा लग गई तो वो क्या, तीली बुझ जाती है, क्योंकि वो क्या है, दैट इज अ वीक फायर, क्योंकि वो कमज़ोर आग है। बट द विंड मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, रोर गर्जना करते हुए, फ्लरिश उसको नरिश करती है, उसको पोषण देती है, उसको ग्रो करती है। किसको ग्रो करती है, स्ट्रॉन्ग फायर्स को ग्रो करती है, यानी कि जो मजबूत हैं उनको डिफ़िकल्टीज और चैलेंजेस और मजबूत करते हैं, और जो कमज़ोर हैं उनको ख़त्म कर देती हैं, उनको नष्ट कर देती है ये हवा। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, जो इससे हवा से जो दोस्ती है ये अच्छी है, क्योंकि दोस्ती तभी होगी जब हम स्ट्रांग होंगे। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम क्या हैं, उसकी हर दिन तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, वी प्रेज। और वो क्या हो जाएगी, ऐसा अगर हमने कर दिया तो हमारी वो दोस्त बन जाएगी, और हम इसका अभ्यास करते रहेंगे, और हम इसकी प्रशंसा करते हैं। किसकी प्रशंसा करते हैं, हवा की प्रशंसा करते हैं। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम उसकी फिर हर दिन प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना तो की ही जाती है, देखो हमारे समाज में जो भी स्ट्रांग है, जो भी मजबूत है, जो भी शक्तिशाली है, उनकी प्रेयर की जाती है, उनकी प्रार्थना की जाती है। और यहाँ पर इसके पोएट के बारे में पहले से ही बता चुका हूँ, दीज आर द वर्ड मीनिंग्स। बीच में कुछ और वर्ड मीनिंग के बारे में भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये क्वेश्चन आंसर पीडीएफ की फॉर्म में अपलोड हैं, और इनको आप वहाँ से नोट करेंगे। पोएट्री में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, देयर इज़ नो नीड टू लर्न द पोएट्री। और चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो लिटरेरी जो कंटेंट हैं, जो पोएटिक ब्यूटी है, साहित्यिक सौंदर्य है। पहला तो यहाँ पर ये है कि विंड कम सॉफ्टली डोंट ब्रेक, यहाँ पर द ब्यूटीफुल यूज ऑफ एनाफोरा ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। डोंट ब्रेक शटर्स, ये डोंट 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 यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स है। और यहाँ पर क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स यहाँ भी हैं, क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग डोर्स। और दूसरा द ब्यूटीफुल यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर मानवीकरण का यूज़ किया है। और मानवीकरण का हमें जो पर्सोनिफिकेशन, जो फिगर ऑफ स्पीच है, उसको यहाँ पर कहाँ यूज़ किया गया है, देखो लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल। तो थ्रू जो एक्टिविटी है, फेंकने का जो काम है, ये ह्यूमन बीइंग, ये जो आदमी है वे ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, विंड को यहाँ पर आदमी का रूप यहाँ पर दिया गया है। सो यहाँ पर ये है। अब और दूसरा है यहाँ पर सिंबलाइजेशन का बहुत बढ़िया यूज़ हुआ, प्रतीकात्मक शैली जिसको हम कहते हैं, तो उसका बहुत ही बढ़िया यहाँ पर यूज़ हुआ है। और ये ब्यूटीफुल यूज़ ऑफ symbolizes, here the wind symbolizes the difficulties and the hardship in the life. So that's all, the explanation, the word meaning, the literary part of the poem, and write the question answer, learn the question answer, and do the preparation. All the best. Thank you.